गेटिंग। और इस टाइम सन की पोजीशन क्या होगी, सन हमारा यहाँ पे होता है, दिस इज द पोजीशन ऑफ द सन, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, अच्छा कैप्रिकॉर्न। कभी कभी मेरे मुंह से कैप्रिकॉर्न की जगह कैंसर निकल जाता है, बहुत बार होता है मेरे साथ, ठीक है। तो ये आप ध्यान रखना, ये विंड कहाँ पे आ जाएगी, 23 डिग्री एंड साउथ में आ जाएगा, ठीक है। तो सन क्या है, नीचे जा चुका है आप, यहाँ से सारी विंड सिस्टम, और ये क्या है, ये ग्रीन लाइन क्या है हमारी, व्हाट इज दिस, ITCZ। तो ITCZ has shifted towards south, ठीक है। So whole wind system has shifted towards the south, getting the mechanism। साउथ में क्या, फिर इसके बाद क्या होगा, दिसंबर के बाद जनवरी फरवरी आएगा, फिर क्या सन क्या मूव क्या करेगा उधर, ITCZ हमारा नॉर्थ की तरफ शिफ्ट करेगा, फिर मार्च अप्रैल आएगा, फिर से वो कंडीशंस क्रिएट होनी शुरू हो जाएंगे, ठीक है। तो ये मैकेनिज्म चलता है इंडिया में, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, यहाँ वाले एरिया में, ठीक है। यहाँ देख लो कितनी सारी चीजों से इंपैक्ट हो रहा है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के बारे में भी अभी हमें लिखना है, ठीक है। पहला हमने देखा STG से इंपैक्ट हो रहा है, फिर हमने ट्रॉपिकल ईस्टर्ली जेट से इंपैक्ट हो रहा है, सोमाली करंट की वजह से इंपैक्ट हो रहा है, ठीक है। सन की मूवमेंट से तो सारी चीजें इनिशिएट हो ही रही है, ठीक है। चलो राइट डाउन वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। राइट डाउन इन द विंटर सीजन, दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट, इस नोट्स को जरूर रिवाइज करना, ठीक है। इन द विंटर सीजन द सब ट्रॉपिकल जेट STJ इज बाइफर्केटेड इनटू two branches. In winter season the STJ is bifurcated into two branches due to physical obstruction of the Himalayas and Tibetan Plateau. The STJ drives the temperate low pressure. The STJ drives the temperate low pressures. The STJ drives the temperate low pressures over Mediterranean Sea. The STJ drives the temperate low pressures over Mediterranean Sea towards east, across Afghanistan, Pakistan, and reach northwest India. These storms are, रिपीट करूं या लिख लिया, ठीक है, समझ में आ रहा है। These storms are residual frontal cycles. These storms are residual frontal cycles which move at the height of 2000 meters, which move at the height of 2000 meters from the mean sea level. Next point, on an average 4 to 6 cyclonic waves, on an average 4 to 6 cyclonic waves, 4 to 6 cyclonic waves reach India between October and April. Reach India between October and April each year, full stop.
नाउ राइट अ सब हेडिंग वेदर एसोसिएटेड विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, मतलब वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के अंदर हम एक सब हेडिंग डालो, वेदर एसोसिएटेड विद वेस्टर्न डिस्टर्बेंसेस। The arrival of these temperate storms, cause precipitation the arrival of these temperate storms cause precipitation leading to abrupt decrease in air temperature. Abrupt मतलब sudden decrease in the air temperature over northwest India. The arrival of these temperate storms cause precipitation leading to an abrupt decrease in air temperature over northwest India. Next point, western disturbances also bring heavy snowfall in Himalayan region, in the Himalayan region and a cold wave to the North Indian plains. Cold wave to North Indian plains. Full stop. Next point, the weather becomes clear after the western disturbance passes away. The weather becomes clear after the western disturbances passes away. अभी आ रहा है, what is its importance? Should I repeat? Cold wave to the North Indian plains. Full stop. Written? Disturbance passes away. बस the weather becomes clear. जब वहां से वो निकल जाती है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस, उसके बाद वेदर क्या है? क्लियर हो जाता है. ठीक है. अभी क्या वेस्टर्न डिस्टर्बेंस सिचुएशन मतलब साइक्लोनिक हैवी प्रेसिपिटेशन हो रहा है कि नहीं, स्नोफॉल हो रहा है. जब ये साइक्लोनिक सिस्टम वहां से निकल जाता है तो वहां पे फिर क्या है, वेदर क्लियर हो जाता है. अब नाउ राइट डाउन इंपॉर्टेंस. व्हाट इज द इंपॉर्टेंस? ठीक है. द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस अफेक्ट द वेदर कंडीशंस ड्यूरिंग विंटर सीजन. Western disturbances affect weather conditions during the winter season. And give occasional rainfall during the winter season and give occasional rainfall which is highly beneficial for the standing rabi crops. What are the important rabi crops? Wheat or mustard and Nisha, what are wheat? Huh? Grams. ठीक है. You can write in bracket. You can write wheat. ठीक है. Barley, mustard, rabi crops में you can write wheat, barley, mustard, gram, lentil, etc.
ठीक है, तो ये हमारे मॉनसून से रिलेटेड सारे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स क्या हैं, क्लियर हो गए। ठीक है, क्लियर हुए सबको कि नहीं? ठीक है, अब एक मैप ड्रॉ करो, आप खुद से ड्रॉ करो। व्हाट इज द रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन, व्हाट इज द पैटर्न ऑफ रेनफॉल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडिया। इफ यू हैव टू शो ऑन अ मैप ऑफ इंडिया कहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश, एक बार और मैंने एक बार रिफ्लेक्ट किया था इस चीज को, आप इंडियन मैप ड्रॉ करो, कहाँ पे सबसे ज्यादा बारिश होगी, कहाँ पे सबसे कम होगी। यू हैव स्टडीड द मॉनसून कैसे आ रहा है, व्हाट आर द टू ब्रांचेस, ड्रॉ अ मैप ऑफ इंडिया एंड शो व्हाट इज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल, rainfall distribution है। Can you draw the map of India? On the map of India, if you have to show which are the regions that have heavy rainfall, that have very low rainfall. क्या हुआ? Because monsoons only bring 80% of the rainfall to India, okay? So they only determine the rainfall distribution or rainfall pattern. ठीक है, you can say. ठीक है, आई हैव ऑल्सो ट्राइड इतने छोटे में अकोमोडेट करने के लिए। ठीक है, बेटर है, एक्सेप्ट कर सकते हो ना, लग रहा है ना इंडिया थोड़ा सा तो क्योंकि मेरा इतना स्पेस था तो मैंने इसी में वो कर दिया। हाँ, नहीं बस रेनफॉल है, अभी रेनफॉल ही बस पड़ा है ना उन्हें कि बारिश हो रही है कहाँ कहाँ, तो बस क्या विंड सिस्टम मत दिखाइए, बस अब ये दिखा दो कि दो ब्रांचेस दिखा दो। ठीक है, दो ब्रांचेस ऑफ, समझ में आ रहा है, दो ब्रांचेस विच आर द टू ब्रांचेस, अरेबियन ब्रांच एंड द बे ऑफ बंगाल ब्रांच। ठीक है, देन यू विल शो व्हाट इज द पैटर्न ऑफ दिस विंड। ठीक है, ये मत ड्रॉ करना, मैं बताऊंगी क्या है ये। ठीक है, आप लोग अपना ड्रॉ करो उसके बाद। क्या हुआ, दिखाओ अपना ड्राइंग दिखाओ। रौनक, बनाए इंडिया का मैप, पूरा तो करो। कोई नहीं, यू ट्राई, एक बार ट्राई करो, दो बार ट्राई करो, कोई इशू नहीं। एग्जाम में आपको हाँ यार साउथ अफ्रीका की जगह पता नहीं, नॉर्थ अमेरिका में पता नहीं क्या बनाया था, इंडिया में पता नहीं साउथ अफ्रीका बना रहे हो तुम। ठीक है, बना लिया सबने, ड्रॉन शो। निशा आपने क्या बनाया, व्हाट इज द पैटर्न यू हैव शोन, बे ऑफ बंगाल,
कहाँ पे बारिश, आपने सबसे ज्यादा बारिश कहाँ पे दिखाया है? वेयर यू हैव शोन सबसे ज्यादा? गुजरात राजस्थान में कैसे? गुजरात राजस्थान में सबसे ज्यादा, मैंने बोला ना ये दिखाने की कहाँ पे क्या बारिश हो रही है ना? सो व्हाट, वेयर यू हैव शोन द हाईएस्ट रेनफॉल रीजन? नॉर्थ ईस्ट एंड ओनली नॉर्थ ईस्ट and Arabian branch will not do rainfall anywhere. You have not shown Arabian branch where it will. हाँ, this Western Ghat region they will also have major. ठीक है रौनक, कहाँ पे सबसे कम बारिश कहाँ पे होंगी? सबसे कम बारिश कहाँ पे होंगी? जो हमने अभी पैटर्न देखा कि विंड यहाँ से बारिश कर रही है, यहाँ से बारिश कर रही है, तो सबसे कम भी तो कहीं बारिश कर रही होगी। सबसे ज्यादा तो इन्होंने बताया कि एक यहाँ पे रीजन पे कर रही है और एक यहाँ रीजन में कर रही है। ठीक है, सबसे कम कहाँ पे करेगी? महाराष्ट्र के अपोजिट रेन शैडो एरिया में, ठीक है, और डेजर्ट एरिया में, और एक और रीजन है हमारा ये हिमालय वाला। सो हाउ वी विल ड्रॉ द पैटर्न? 300 सेंटीमीटर। एक तो सबसे पहले दिस रीजन यू विल मार्क, ठीक है, दिस रीजन हैव मोर देन 200 सेंटीमीटर। एक और मैप बनाओ इंडिया का, इसमें आ जाएगा, अगर खिचड़ी नहीं किया तो इसी में मार्क कर लेना, ठीक है। Three lines for 100 degree centimeter. This is for 200. Next you draw this portion 1. Look, this 2. ठीक है, and the third one where you will draw north में, ठीक है, ये वाला बेल्ट चुका हमारा। So they have 100 centimeter. Here we have greater than 200 centimeter rainfall northeast India because of the Bay of Branch. ठीक है, funneling effect. So much rainfall is happening in this region. Second हमने यहाँ पे देखा तो this is the line of 100 centimeter and this is line of 100. Getting? ये जो लाइन मैंने ड्रॉ की है, ये ब्लू, this one blue. This is called the water divide. इंडिया की वाटर डिवाइड में देखोगे कि इधर का पोर्शन अलग रेनफॉल वाला रीजन हो जाएगा, इधर के अलग रिवर सिस्टम चलते हैं ना, ठीक है। हियर वी हैव डिफरेंट सिस्टम ऑफ वाटर रिवर सिस्टम एंड वेयर एंड इन द साउथ वी हैव डिफरेंट वाटर सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम एंड ऑल, ओके। नेक्स्ट यू विल मार्क, यहाँ पे क्या सिचुएशन है, यहाँ पे क्या है, लेस देन 100 सिचुएशन। अच्छा, ये ब्लू में पेन चेंज करती हूँ। यहाँ पे आप धीरे धीरे ऐसे ड्रॉ करोगे, मान लीजिए 80 हुआ, फिर देन वी हैव 60, देन वी हैव 20 और 40 के आसपास रेनफॉल। ये डेजर्ट रीजन में आते आते क्या हो जाता है, 60, 20 ऐसे सबसे कम रेनफॉल यहाँ पे पड़ती है ना। सो दिस इज शोइंग डिक्रीजिंग इन द रेनफॉल। समझ में आ रहा है व्हाट आई एम शोइंग? गेटिंग? नॉर्थ में भी आप ऐसे हिमालय वाले रीजन में जहां बर्फीली रीजन होते हैं, यहाँ पे आप करोगे 60, देन वी हैव 40, then we have high Himalayas, we have very less rainfall, right? Himalaya region में dry cold areas, so we have very less rainfall, ठीक है। So this is this water divide में, एक मिनट इसको मैं divide, this region has greater than 100 centimeter of rainfall. Water divide के इस तरफ what we have, वो जहां पर यहाँ सारे मॉनसून विंड्स आती है, यहाँ पे बारिश करती है, यहाँ पे फ्लड सिचुएशन क्रिएट होती है, तो यहाँ पे ग्रेटर देन 100 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल। एंड दिस साइड, इसको कंप्लीट करते हैं। Getting the difference in this water divide, why? Because this region has less than water and this is greater than water rainfall. यहाँ पे बिहार झारखंड वाले रीजन में, बंगाल वाले एरिया में बहुत ज्यादा बारिश होता है, फ्लड सिचुएशंस भी होती हैं, ठीक है। अब यहाँ इसके अंदर सिचुएशन देखो, यहाँ पे कंडीशन देखो, लुक हियर, यू विल ड्रॉ लाइक दिस, एक होगा 60 का, फिर 20 का, ऐसे करके, मतलब अंदर की तरफ क्या है, वाटर क्या रेन शेडो एरिया है, तो 60, 40, 20 देयर इज अ डिक्रीज इन दी अमाउंट ऑफ रेनफॉल। गेटिंग क्लियर? जो ये हमारा वो लातूर वाला रीजन है, इस चीज को ऐसे देखो, जैसे पहला सर्कल 60 का बनाया, फिर उसके अंदर हमने
40 का बनाया, फिर नीचे क्या है 20 का है। तो ये वेस्टर्न महाराष्ट्र, ईस्टर्न महाराष्ट्र वाला पोर्शन हो गया। ये स्कैर्स रीजन है, स्कैर्स रिवर्स। गेटिंग द रीजन, कहाँ पे क्या पानी है। इज दिस मैप गेटिंग क्लियर व्हाट दिस मैप इज शोइंग? एनी डाउट हियर? यहां तक सब क्लियर है? कैन यू ड्रॉ लाइक दिस? रेनफॉल पैटर्न समझ में आया? हाउ? एक और लाइन यू विल सी लाइक दिस इफ यू विल ड्रॉ। If you move from this east to west, if you go from east to west, the rainfall goes on decreasing. Can you see now? Here we are having maximum rainfall. If you come to the west, the rainfall goes on decreasing. This is a general inference that you can get from this. Okay? समझ में आया? चलो, यहाँ पे फ्लड सिचुएशन है। ये सिचुएशन तो समझ रहे हो ना? ये वाला रीजन हमारा फ्लड वाला है। यहाँ पे हमारी कंडीशंस किसकी आ जाती हैं? ड्रॉट की। Tomorrow you will have to revise this all things. Okay, जितना भी मैंने 2 दिन में कराया मॉनसून से रिलेटेड all the topics, you will revise and come. Okay, I can take oral test और objective test, anything. Okay, या फिर मैं आंसर लिखने के लिए भी दे सकती हूँ। ठीक है? रेनफॉल डिक्रीज हो रहा है। ठीक है? यहाँ से when you move from east to west, can you see the direction of this? डायरेक्शन इसीलिए शो किया है मैंने कि विंड अगर इधर से आप इधर आओगे तो रेनफॉल, दिस इज अ जनरल डिक्रीज, दिस इज अ जनरल टेंडेंसी ऑफ इंडिया। सो वी ट्राई टू, किसी चीज का पैटर्न पढ़ना होता है तो उसको मैप के थ्रू, इंडियन ज्योग्राफी को आप जितना ज्यादा मैप से रिलेट करके पढ़ोगे दैट विल बी बेनिफिशियल। हर सिचुएशन के लिए आप मैप याद कर लो, रेनफॉल के लिए, एयर कंडीशंस के लिए, है ना, सॉइल, वेदर, एवरीथिंग यू स्टडी विद द हेल्प ऑफ मैप्स ओनली। फिर आपको याद होते जाएगा। आप ड्रॉ करोगे, उसको इंप्लीमेंट करके देखोगे तो आपको मेमोराइज होगी। थ्योरी सेकेंडरी चीज आएगी। ज्योग्राफी में, स्पेशली इंडियन ज्योग्राफी में, राइटिंग इज सेकेंडरी। फर्स्ट यू विल हैव टू अंडरस्टैंड थ्रू मैप्स एंड डायग्राम्स। ठीक है? इससे आप समझ जाओगे, इससे आप लेके एक पैराग्राफ लिख सकते हो ना, है कि नहीं? यू कैन राइट 1 पैराग्राफ। अगर कोई सिचुएशन आप ड्रॉट से रिलेटेड हो, फ्लड से रिलेटेड क्वेश्चन हो, या फॉरेस्ट, अब इसी पे आप इन्फर कर सकते हो ना कहाँ पे कैसे पेड़ होंगे। इसी से आप वेजिटेशन इन्फर कर सकते हो, कहाँ पे बहुत ज्यादा बायोडाइवर्सिटी होगी, कहाँ पे कम होगा, कहाँ पे कैसी जलवायु है कि नहीं? सो दिस मैप्स एंड डायग्राम्स हेल्प यू इन गेटिंग बेटर इंफॉर्मेशन। ओके, सो इमेजेस को, एनसीईआरटीज की इमेजेस को अच्छे से स्टडी करने की कोशिश करना। ओके, चलो हमने देख लिया, आज इसको यहीं पे एंड करेंगे। एंड आई वांट यू ऑल टू डू द रिवीजन, रीड द नोट्स एटलीस्ट, रीड द एनसीईआरटी एटलीस्ट। ओके, 11th-12th की एनसीईआरटीज कंप्लीट हो जानी चाहिए। ठीक है? इंडियन, फिजिकल, बोथ 11th-12th क्लास की। ओके, रौनक पढ़ रहे हो नहीं पढ़ रहे हो एनसीईआरटी? हाँ, मैं कॉन्फिडेंस नहीं लग रहा मेरे को कि हाँ पढ़ रहा हूँ। चलो कल देखते हैं।